Hello guys, this is Wakar and I'm uploading amazing videos. If you like those videos, then please comment and like them. And if you are new on my channel, then subscribe it and press the bell icon so that you're aware when I upload a video. Thank you. Now we're going toward our task, which was given in week 5, or it is performed in our class. Majority of students can't perform it, so we're going to discuss it. अच्छा, ओके, पहले हम इसे लेट करते हैं z इज इक्वल टू 1. Okay, first of all, we'll talk in English, then uh, I'll explain them in Urdu. First of all, I'm going to write the question to xy, and then as you see that it's part 2 minus 2 minus 2 is its power of y, and then minus 3x, no, 3 ep, oh, oh 3 exponential, just this, and then it was exponentials part 3 into x plus it was log x plus y. So now what we'll do, uh, first of all, as you can see that here we have two variables x and y. So we, by using these variable, we have to find the value of z. So how we can find it? First of all, we'll assign a value of x. Let consider x is equal to 2, and I don't want to print it, so we'll use a semicolon here. Then y is equal to 3. I also don't want to print this, so I use a semicolon here. Now what I'll do here, I'll just you can see it's a question. If I run this program, then it's play a huge error. We find, look, two times it gave us two times error, mean it's we write the question is its statement according, it's not about the given statement. We have to change it. Okay, now we're going to change it. How we can change it? Number one, it's very simple. 1 plus 2xy, there is a steric sign which is missing here and here. So as I told you before, in MATLAB, if those signs are not present, or we don't write it, so it won't work here. Like in simple word, we if we write 2 into x, so it's mean 2 is multiplying with x. If we write this in a copy, 2x, it's mean 2 multiplying x. 2 is multiplying with x, but here it is an error. If 2 is multiplying with x, then we have to show it with a steric sign that 2 is multiplying with x. So we show it here. 2 is multiplying with x, x is multiplying with y, minus 2, and now here minus 2. We usually use that the power up to the variable. We write the power upon the variable, but here we can't do this. For this purpose, we have to, first of all, we use the power sign, then use bracket, so that minus value, it don't subtract minus 2 from y. Actually it's minus 2, it's power, not a value. So we use this. Now here you can see minus 3 into e into 3x. As you see here, exponential's power is 3x.
here we use a bracket. No, but again error because exponential in copies or simply written work we write e for exponential. So in MATLAB we write exp for exponential in here. Now we use a static sign here, here, and here. Now you can see that log x plus y. Now when we run this, it will give definitely an answer. Okay, it means something is missing here. What is missing here? Anyone knows? Anyone? No, no idea. We use an incorrect symbol here, exponential. We don't have to use asterisk sign here because it's par, not a value. We're not multiplying 3 into x with exponential. Actually it's the par or exponential. Now we run it. You can see the answer is minus 1.2072 e plus 0 e 03. This is the answer. Now I'm going to explain it in Urdu. पहले तो भाई लोग हमने सबसे पहले x को वैल्यू साइन कर दी, y को वैल्यू साइन कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, जो करेगा ये करेगा। क्या करेगा, हमने क्वेश्चन लिखा था पहले, ठीक है, वो स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं थी। अगर हम कॉपी पर लिखते हैं तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त है क्योंकि हमें पता लग रहा होता है कि यार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने ऑन की हुई है ना रिकॉर्डिंग, हाँ बस सही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीन ये है कि अगर तो ये हम इस तरह लिखेंगे तो वो यहाँ पर गलत कर देगा, ठीक है। हमें यहाँ पर माइनस भी डालना होगा, प्लस भी डालना होगा। अब जैसे यहाँ पर किसी के साथ हमें पता कुछ नहीं होता तो उसके साथ प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। जब हमें पता है 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम बीच में स्टेरिक का साइन नहीं डालेंगे तो हमें इस चीज़ ये एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं डालोगे वो कहेगा भाई ये क्या तुमने अजूबा दे दिया हमें। जब तक इसमें 3x के दरमियान स्टेरिक का साइन नहीं डालोगे तब तक ये नहीं वर्क करेगा प्रॉपर्ली। अब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी। डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक मिसिंग की हुई थी, यहाँ पर मैंने स्टेरिक का साइन जान के डाला था ताकि ये एक एरर दे। अब ये इसने एरर दिया और मैंने उसी टाइम इसे सोल्व इसलिए कर दिया क्योंकि अब यहाँ पर मैं पहले तो ये पूछ रहा था कि भाई हमने कहाँ पर कोई चीज़ डाली है, तो कौन सी चीज़ नहीं डाली वो बताएं। तो फिर मैंने सोचा कि यार हम डालते हैं कोई चीज़ और फिर पूछते हैं कि भाई ये क्यों दे रहा है एरर। तो उसकी वजह ये थी कि ये एरर इसलिए दे रहा था कि एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि उसकी पार में कोई चीज़ हो, चाहे ज़ीरो हो चाहे वन हो, ठीक है। अब हम उसकी पार में कुछ नहीं दे रहे थे, हम उससे मल्टीप्लाई करवा रहे थे, वो तो गलत होना ही था, मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो इसलिए हमने फिर इसे कैंसिल आउट किया, देन हमारे पास ये आंसर हमारा आ गया, अगेन आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारा अगला क्वेश्चन है s इज इक्वल टू 2 प्लस 3x इंटू साइन 7x। अच्छा, अब मिस ने हमें क्वेश्चन दिया था अगला, s इज इक्वल टू ये था, इसके दरमियान कुछ वैल्यूज़ थी, 2 प्लस 3x। लो जी, एक तो ना इसलिए ना चलो बहरहाल ये हो गया सीन भाई, ये आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास। फिर उसने उस क्वेश्चन में, अच्छा ये देखिए मिस ने ना यहाँ पर हमें क्या है, साइन फिर 7x ये हमें दिया था क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ही लिखकर प्ले करता हूँ तो ये बहुत बड़ा एरर देने वाला है। क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें नहीं डाली, कुछ मिसिंग है। यहाँ पर एक स्टेरिक का साइन मिसिंग है, ठीक है। शाबाश, अब तो मुझे पता है आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि ये सीन क्या हो रहा है। यहाँ पर एक ब्रैकेट मिसिंग है,
ठीक है ना, ये चीज़। अब भी मैं चलाऊंगा तो एरर देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक साइन मिसिंग मिसिंग है। जब ब्रैकेट डली होती थी और इस तरह लिखा होता था, हमें पता होता था कि यार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इसे नहीं बताओगे तो भाई इसने नहीं चलाना तुम्हारा प्रोग्राम। अब यहाँ पर वो कह रहा है कुछ और भी चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, कौन बताएगा? एक चीज़ मैंने खुद छोड़ी हुई है यहाँ पर। चलो, मुझे पता आप लोगों को दिख गई होगी। ये यहाँ पर हम लोगों ने स्टैरिक का साइन नहीं डाला हुआ। जब हमने डाल दिया तो ये चल गया। तो ये सीन है। यहाँ पर सिर्फ साइंस का मसला है। जब आप डालना भूल गए आपका सवाल गलत हो गया, जब आपको याद आ गया आपका सवाल सही हो जाएगा। तो इतना सा सीन है। हम्म, अच्छा जी, आगे 1 मिनट। अब 5 मिनट ज़रा मैं भी वेट करूँ, थोड़ा ब्रेक लूँ, थक क्यों आज। चलो बहरहाल, अब सीन ये है कि अगला क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। ज़रा 5 मिनट की मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई लोग, आ गए वापस। मेरी 5 मिनट की ब्रेक आपके लिए तो मेरा ख्याल है 1 मिनट की भी नहीं होगी। बहरहाल चलो, सीन शुरू करते हैं यहाँ से। v इज़ इक्वल टू ये हमने पहले एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। हम कॉलम मैट्रिक्स बना रहे हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, रो मैट्रिक्स बनाते हैं प्रॉपर एक ना, 2 2 इंटू 3 का, 2 3 4। अब ये मैंने डाल दिया सेमी कॉलन, उसके बाद यहाँ 5 6 7 और ये। ठीक है, अब जब मैं इसे प्ले करूँगा ना, तो ये कुछ इस तरह का बन गया। अब ये इस तरह का बन गया ना, तो अब हमने क्या करना है। मैंने अगर लेट सपोज एक रो प्रिंट करवानी है, मैं कहता हूँ भाई मुझे ना दूसरी रो दे दो, अ, या दूसरा कॉलम दे दो। पहले हम कॉलम प्रिंट कराते हैं ना। हम कहते हैं कि भाई हमें ये दूसरा जो कॉलम है ना, ये वाला 3 6, ये हमें प्रिंट कर दो। तो फिर हम आगे यानी कि डील करेंगे। हम क्या करेंगे इसके लिए, वी हमने लिया वी, इसके बाद ये ब्रैकेट, इसमें हम डालेंगे पहले कॉलन, कॉलन के बाद हम कॉमा, कॉमा के बाद हम डालेंगे 2 और ये 1। अब यहाँ पर कह रहा है सेम प्रिंट करो दूसरी रो। ठीक है, हर बंदे का अपना हिसाब होता है, मैंने इस तरीके से याद किया हुआ। अच्छा, मैंने ये यहाँ पर लिख दिया गलती से, यहाँ हमें नहीं लिखना क्योंकि मैं स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ। चल, तो यहाँ पर भी जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा, मेरी स्क्रिप्ट ख़राब हो जाएगी फिर उस तरीके से ना यहाँ पर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई दूसरी रो, ये देखो ये वी रो सेम, इसका मतलब होता है जब कॉलन डालो ना, वैसे उसका मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम एज कह लो या सेम टू सेम कह लो, इस तरीके से इसका मतलब होता है सेम। ठीक है ना, तो फिर ये आगे कॉमा आ जाता है, उसका मतलब है सेकंड रो। अब वो कह रहा है सेम प्रिंट करो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेम प्रिंट करो सेकंड कॉलम। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखो मेरे पास 3 6 प्रिंट आ गया। अब मुझे अगर करना है इसकी रो प्रिंट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वी यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अब मैं कहूँगा वी दूसरी रो जो है ना भाई, मुझे प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डालूँगा कॉमा और फिर मैं डालूँगा कॉलन, कहूँगा दूसरी रो प्रिंट करो। ये आ गई जी, 5 6 7, 5 6 7। अब यहाँ पर जो ये लेक्चर है ना, ये सीन तकरीबन एंड हो गया। ठीक है, तो यही था। अब लेकिन एक चीज़ और भी है कि लेट सपोज मैं कहता हूँ बी इज़ इक्वल टू वी, लेकिन यूँ नहीं, कुछ यूँ करके होगा वी। ठीक है, उसके बाद मैं डालता हूँ सेमी कॉलन, फिर मैं डालता हूँ 1 2 3 और फिर ये। अब ज़रा देखना, लो फिर मैंने नीचे लिख दिया। क्या यार, मसला ही है। चलो बहरहाल कुछ नहीं होता, एंजॉय करो। यस,
चलो देखते हैं रन करके से क्या होता है। यहाँ पर इसने दे दिया एरर, जबकि यहाँ पर इसे चाहिए था कि ये प्रिंट करवाता पूरी रो को, ठीक है, ये एक रो इसमें ऐड कर देता, लेकिन यहाँ पर इसने एरर दे दिया। इस लेक्चर को हम अगले उसमें देखते हैं, अगले लेक्चर में इसे कवर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक हम इसे कवर कर लेते हैं। अभी ये हमारा वीक 5 है मेरा ख्याल है, तो ये हमारा काम हो गया। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, और मैं तो वैसे ही मुझे लगता है मैं बड़ा बोलता हूँ, लेकिन चलो बहरहाल सीन गुड है।